Good morning. Our next session, number third, self-motivation. Have you heard of the story of the hare and tortoise? आपने हेयर और टॉयज की जो है स्टोरी सुनी होगी. Who won that race in spite of being slow? The tortoise. The key to win was that the tortoise never thought less of itself and stayed motivated even though it was lagging behind. वो क्या सोचता है, मोटिवेट होता है. वो यूँ नहीं सोचता कि मैं कम चलता हूँ, मैं धीरे चलता हूँ तो मैं रेस नहीं जीत पाऊँगा. But slowly and gradually it crossed all hurdles and continued the race without being demotivated. Without demotivate हुए बिना वो क्या करता है, अपनी जो रेस है कंप्लीट करता है. सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स. Here are some examples of self-motivation. Two examples are given here, Neha and Rekha. Neha spends all her after school hours to practice, hours to more and more sample questions. And other girl is doing for their dance classes. Different people are motivated by different things at different times in their lives. Types of motivation. Two types of motivations are there, internal motivation, external motivation. In internal motivation, we do things because they makes us happy, healthy and feel good. When you perform on your annual day function and you learn something new such as dancing, singing, you feel good. External motivation. We do things because they gives us respect, recognition and appreciation. Let us take an example. Suresh participated in a 100-meter race and won a prize. क्या करता है वो, प्राइज जीत जाता है. देन सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिली उसे. ठीक है. क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल. कुछ क्वालिटीज दी गई हैं यहाँ. फर्स्ट इज नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ. आपको पहले क्या जानना है कि आपको चाहिए क्या है आपके लाइफ में. आर फोकस्ड एंड देन फोकस कीजिए उसके ऊपर. नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट. आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसे चूज कीजिए. आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. देन आप नेक्स्ट पॉइंट आप मिस्टर ई श्रीधरन, former managing director, Delhi Metro Rail Corporation Limited, was a self-motivated, energetic person. With his dedication and respect for others, he motivated his team to work hard and achieve results. क्या करता है, उन्होंने मोटिवेट किया अपनी वर्क टीम को हार्ड वर्क करने के लिए एंड देन अचीव किया अपना रिजल्ट. देयर आर building self motivation steps are given here. 4 steps are, you can see this. First is find out your strengths. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं. अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी. आपको क्या चीज़ खुश करती है. सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स. नेक्स्ट इज सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स. फोकस, डिफाइन द गोल्स यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑन योर गोल्स, एनर्जी टू अचीव योर गोल्स. नेक्स्ट इज डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल्स. आपको प्लान करना है एंड सेट टाइमलीनेस टू अचीव योर गोल्स एंड प्लान अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू विल डू टू अचीव ईच गोल. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट इज ऑल्सो गियर. Here are practical exercises are given. You can see this first activity. Second activity is also given here. And check your progress questions are also given here. You have to try these questions after the reading of the session number 3. Next, our session is session number 4, self-regulating goal setting. Goals and setting smart goals. First point is goals and setting smart goals. A man was traveling and stopped at an intersections. He asked an elderly man, "Where does this road take me?" वो क्या पूछता है कि एक आदमी है जो ट्रैवल कर रहा है, वो अपने किसी पॉइंट पे रुक के किसी एक मैन से पूछता है कि ये जो रोड है कहाँ जाएगा. जो एल्डर पर्सन है क्या कहता है उसका, वेयर डू यू वांट टू गो. आप कहाँ जाना चाहते हो. मैन क्या कहते हैं, आई डोंट नो. जब उसे रास्ता ही नहीं पता होगा या उसे पता ही नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है, देन हाउ कैन अचीव देयर गोल. Goal setting
is a very essential factor in your personal life. The process of goal setting in your life helps you decide on how to live your life, where you want to be and how you want to be in the future. आप गोल सेटिंग क्या एक एसेंशियल फैक्टर है आपकी पर्सनल लाइफ का, जो क्या बताता है कि आपकी पर्सनल योर लाइफ हेल्प्स यू टू डिसाइड हाउ टू लिव, कैसे आप जीना चाहते हो, कैसे क्या करना चाहते हो और क्या आप फ्यूचर में चाहते हो. गोल्स गोल्स होते क्या हैं? दे आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स with a deadline to get them. Let us take an example. Saving pocket money to buy a favorite mobile phone by a particular date. आपने डिसाइड किया कि आपको आपका जो फेवरेट मोबाइल है वो आपको एट पर्टिकुलर डेट, किसी एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड किया आपने, तब तक आपको अपना मोबाइल जो है पॉकेट मनी से सेव करके आपको चाहिए. The next is goal setting. It is all about finding and listening your goals and then planning on how to achieve them. प्लानिंग होती है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि आपका गोल क्या है, देन उसके लिए लिस्ट बनानी है, देन उसका प्लान करना है कि कैसे आपको वो अचीव करना है. आपको हाउ टू सेट गोल, हम कैसे किस तरीके से हमारे जो गोल है हम उसको सेट कैसे कर सकते हैं. स्मार्ट मेथड इज गिवन here to set our goals. First, S for specific. A specific and clear goal answers 6 questions. स्पेसिफिक आंसर गोल जो है हमारा क्लियर करने के लिए हमें जो ये जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू आई वांट टू डू, वेयर डू आई स्टार्ट, हमें कब स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है, जो हम कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है और क्या करना चाहिए हमें. नेक्स्ट इज मेजरेबल. अ मेजरेबल गोल आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ मच, मेजरेबल की कितना कितना करना है, हाउ मच कितना करना है, हाउ मैनी कितनी बार करना है, हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव्ड रिजल्ट, कि हमने अचीव कर लिया है रिजल्ट. नॉट मेजरेबल गोल जो होगा ये तो क्या होते हैं, हाउ मच ये मेजरेबल हो गया, और नॉट मेजरेबल गोल क्या हो गया, आई वांट टू बी रिच, कितना रिच होना है पता नहीं. और मेजरेबल गोल हो गया, आई वांट टू हैव 5 times मोर देन व्हाट आई हैव टुडे इन माय हैंड एट एंड ऑफ दिस ईयर. नेक्स्ट इज अचीवेबल. ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल. बिगर गोल क्या होंगे, आई वांट टू बिकम अ टीचर इन माय स्कूल. Breaking it into smaller goals. Complete higher secondary, complete graduation, complete B.Ed, then apply for jobs in the teaching field. कि आपको कैसे अचीवेबल बना सकते हो आप थोड़े थोड़े टाइम से. नेक्स्ट इज रियलिस्टिक. अ रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वांट टू अचीव एंड कैन वर्क टुवर्ड. Examples of unrealistic goal is I will read my entire year syllabus in one day and get good marks. Realistic goal, I spend 3 hours every day of the year after school to revise my subjects to get good marks in the exam. Next is time bound. टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए कि हमें इतने टाइम में हमारा काम करना है. आई वॉन्ट टू लूज 10 किलोग्राम समडे, नो 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 नो. टाइम बाउंड गोल इज आई वॉन्ट टू लूज 10 किलोग्राम एट दैट स्पेसिफिक टाइम. Practical exercises are also given here and activities also given here. You can see this and you have to try to solve this. Check your progress questions are also given here. You have to solve this and what you have learned कि आपने पढ़ा क्या है, रिवीजन लेना आपको. नेक्स्ट सेशन इज सेशन नंबर 5 सेल्फ रेगुलेशन टाइम मैनेजमेंट. हमें सबसे पहले क्या जानना है कि व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. समीर वॉज अ लेजी बॉय एंड ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन थिंग्स. वो क्या करता है, वो एक लेजी बॉय है, वो अपनी जो काम जो है हर थिंग्स को अपनी चीज़ को क्या करता है, पोस्टपोन करता रहता है. एक दिन क्या हुआ, हिज फादर ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम. उनके पापा ने क्या किया, वैल्यू ऑफ टाइम बताने के लिए समीर प्रोमिसेस फादर दैट ही वुड नेवर पोस्टपोन द मीटिंग.
वो क्या, एक दिन क्या होता है, वो हमारा जो प्राइस है वो प्राइस के लिए नेक्स्ट डे जाता है। तो वो प्राइस क्या होता है, प्राइस तो सर्कस टिकट का है और नेक्स्ट डे जो वो प्राइस है वो वैलिड नहीं है। देन समीर लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन कि उसे टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। आपको किस टाइम पे कितने टाइम में अपना काम करना है। एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ, समीरा और नेहा। Samira is always punctual at school. She has a regular schedule. And Neha usually arrives late to work. She does not submit her assignments on time. She sometimes gets carried away in certain activities and forget the main task in hand. वो क्या करती है, वो हर चीज़ के लिए एक्टिविटीज़ जो है अपना जो मेन टास्क है वो कंप्लीट नहीं कर पाती। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू। वो किसके लिए हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, मेक अ डेली टाइम टेबल, मेक अ गुड गैस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डू समथिंग, कितना टाइम तक होगा। 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। 4 स्टेप्स आर गिवन हेयर। फर्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइज। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज करना है कि सबसे पहले आपने डे में पूरे डे की एक्टिविटीज़ जो है आपको अपने टाइम टेबल में लिख लेनी है। देन आप उनको we keep our surroundings and study table clean and many more things are given here. You have to try. Second is step 2 priorities. सबसे पहले आपको प्रायोरिटीज समझनी है कि कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। थर्ड इज कंट्रोल। वी हैव अ कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज एंड टाइम। फोर्थ इज स्टेप 4 स्टैक ट्रैक। We identify and note where we have spent our time. This will help us analyze if we have used our time effectively or not. Okay. These are the 4 tips for effective time management. First is organize, second priorities, third control, fourth is track. With the help of this, you can manage your time. एंड सम टिप्स ऑफ फॉर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टिप्स दी गई हैं। अवॉइड करो आप पोस्टपोन करना किसी भी एक्टिविटी को। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क एंड डेवलप अ नो डिस्टर्बेंस जोन एंड सम प्रायोरिटीज़। प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट। आपको लिस्ट जो आपको काम करना है उसके लिए लिस्ट तैयार करो। एंड सम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज गिवन हेयर, यू कैन सी दिस and you have to try to solve these exercises and activities also given here. Activity 1 and you have to solve this, and activity 2 also given here, and check your progress. Questions are also given here. You have to solve these questions with the help of reading the session. Hence your chapter will be completed. In next video we have started our next unit.